السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان علی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں قربان بول رہا ہوں سر. جی قربان بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا نام ہے آپ کا. سبحان اللہ. اور سنائیں سب خیریت سے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کرم ہے سر. بھائی میں افو خان بول رہا ہوں، آپ کا چھوٹا دینی بھائی. جی 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 تھوڑا آپ سے مطلب بات کرنی تھی دینی ٹاپک پہ. بولیے سر. جی یہی این اللہ کے تعلق سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کا مطلب اس بات کے اوپر آپ کا عقیدہ جاننا تھا. بھائی میں افو خان بول رہا ہوں، یو پی الہ آباد. ہاں بولا سر، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے تعلق سے نہیں اور اللہ نہیں، این اللہ یعنی کہ اللہ کہاں ہے. جی جی این اللہ کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ہمیں جاننا تھا. اچھا میرا عقیدہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی جی آپ کی جماعت کا مطلب کیا عقیدہ کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. بے شک اللہ تعالیٰ ذاتاً اپنے شایع نشان، جیسے عرش پہ اپنے شایع نشان کمیت کیفیت کے بیان کیے بغیر، اسی طرح اپنے شایع نشان اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں. اس کی کیفیت نہیں بھائی مطلب سمجھے نہیں، کیا مطلب یہ شایع کیا؟ اپنے شایع نشان. ہاں مطلب تھوڑا اس کو مطلب تھوڑا واضح آپ اگر کر دیں گے تو بڑی آسانی رہے گی میرے پیارے بھائی. کر دیتا ہوں. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو امام مالک نے اس وقت الرحمن الرحیم سوا کے اس کی تفسیر میں دیکھ لیجیے، مل جاتا اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، کیفیت مجہول ہے. اس کے بعد نہیں وہ تو کیفیت کے بارے میں مطلب کہا تھا نا کہ وہ لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم، بس وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے تو ہے نا. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا عقیدہ کیا ہے. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ اس کو مطلب کون سا آنسر دیں گے؟ ہاں بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے شایع نشان. اچھا اللہ تعالیٰ مطلب بھائی وہ ہر جگہ موجود ہے. بے شک. جی تو یہ جو عقیدہ ہے مطلب یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ قرآن سے پڑھا ہم نے. جی جی بتا دیجیے بھائی تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ہم بھی اس کے اوپر عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم وهو معكم اينما كنتم فاينما تولوا فثم وجه الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب. یہاں پر اللہ تعالیٰ قریب ہے بولے. کتنے قریب ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہاں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اس آیت پر ایمان لاتے آپ؟ ہاں بالکل میرے بھائی، پورے قرآن کی آیتوں پہ ایمان ہے نا. ختم ہو گیا بھائی. ان کے تراجم ان کے تفاصیل دیکھ لیجیے. اور یہ نہیں قربان علی بھائی کیا مطلب آپ کا عقیدہ ایسا ہے کہ آپ مطلب بھائی وہ جو بعض آیتیں ہیں ان پہ ایمان آپ لاتے ہیں اور بعض آیتوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں؟ مسلمان ہیں. نہیں تو اصول تو آپ کا میرے بھائی ایسا ہی ہے کہ مطلب بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض آیتوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. بتا دیے وہ کون سی آیت ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ایک ہی جگہ ہے؟ ارے بھائی ایک کو تو بتائیں نا، مطلب بہت ساری ہیں. اب جیسے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی کہ رحمان عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب کافی جگہ آتا ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، اور سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59. تو آپ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ مطلب بھائی وہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو وہ اٹھا کیوں رہا ہے؟ اس کا جواب دوں. اٹھتی چیز مطلب وہی ہے نا جہاں پہ کوئی اونچائی ہو، اوپر ہو، یا مطلب ہر جگہ کوئی چیز اٹھا لیتا ہے. اس کا جواب دوں؟ ہاں دیجیے. سنیں گے آپ؟ ارے بالکل سنیں گے میرے بھائی. ہاں ٹھیک ہے، بعد میں کریں گے. آپ دیکھیے
इंसान मिसाल पहले मिसाल दूंगा, और अगरचे कि अल्लाह ताला की जात के लिए मिसाल देना अच्छा नहीं है, वला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल। हाँ, तो मिसाल आप ना दीजिए उनके ताल्लुक से ना, आप सीधे दलील दीजिए। हाँ, मैं आपको दलील भी दे रहा हूँ। अबू दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जमीन के सुराख तक रस्सी छोड़ेंगे आप जमीन से, वो जाते जाते जाके अल्लाह पे जाके रुक जाती। आप जानते हैं इस हदीस को? हाँ, जानते हैं मेरे भाई। इसका माना क्या आपने लिया कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह भाई को मतलब जमीन के अंदर है? सुनिए, मैं क्यों लो माना, अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अगर एक रस्सी छोड़ी जाए तो रस्सी जाकर, अरे तो उसको साहबा ने कैसे समझा मेरे भाई? आप क्या अपनी अक्ल से मतलब खाली वो जो हदीस का मतन है उससे आप भाई वो समझ जाओगे? अच्छा, आप बताइए साहबा ने क्या समझा इसको? भाई इसका माना ये है कि दुनिया में कोई भी चीज हो वो भाई वो अल्लाह सुब्हानो ताला तक ही जाएगी वापस। कोई मतलब जिसका कोई एंड है वो अल्लाह ताला के पास एंड है। अल्लाह से कोई चीज नहीं बच सकती है, सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। आप एक रस्सी भी फेंकोगे, कहीं भी डालोगे, वो पहुंचेगी अल्लाह ही तक। सुनिए मेरे भाई, सुनिए, मतलब कौन सा? अच्छा, आप ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है अपनी जात के एतबार से, आपका अकीदा ये है? तो जो मतलब भाई जैसे मतलब भाई ये शराब खाना है, जुए के अड्डे हैं और टॉयलेट बाथरूम है, नदी नाले हैं, आपकी जेब है माज़अल्लाह, क्या इनमें भी अल्लाह ताला मौजूद है? इनमें भी अलग चीज है, हर जगह होना एक अलग चीज है। इनमें तो हर जगह मेरे भाई शराब खाना भी तो एक मतलब भाई वो जगह ही है, और जहन्नुम भी तो एक जगह है। अब क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला को जहन्नुम में आप डाल दोगे? मेरे भाई सुनिए, भाई ये बहुत बातिल अकीदा है। मैं आपको इस्लाह की नियत से बता रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, और उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर वो हर तरफ है, हर जगह है। और जो आपकी शरक के जो करीब है ना, वो अल्लाह का इल्म है, पावर है, कुदरत है, वो अल्लाह ताला खुद जात के एतबार से आपके पास नहीं है। अगर आपकी बात अगर मान ली जाए तो आपकी शरक के करीब भी अल्लाह है और मेरी शरक के भाई जो करीब भी अल्लाह है, यानी कि जितने इंसान है सबकी शरक के करीब भाई अल्लाह है। तो कितने साल है भाई वो अल्लाह हो जाएंगे, नौजुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि कहो कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह एक है ना, वो एक अल्लाह आपके साथ भी, मेरे साथ भी, आपकी अम्मा के साथ भी, मेरी अम्मा के साथ भी, आपके बाप के साथ भी, मेरे बाप के साथ भी है, तो कितने सारे अल्लाह हो जाएंगे जाती तौर पे माज़अल्लाह। तो ये अकीदा ही बातिल होता है। यहाँ पे इल्म मुराद है, इल्म कि आपकी शरक के करीब है। आप अगर झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, मक्कारी करेंगे, शराब पियेंगे, कुछ भी करेंगे, जिना करेंगे, तो आप भले ही मेरे भाई अकेले में कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म आपकी शरक के करीब है। अल्लाह ताला से आप भाई कभी नहीं बच सकते। तो ये माना है इसका, आप बात समझे? लीजिए, अल्लाह रहम करे मेरे भाई, आपको अकीदा बता रहा हूँ। और आप जो अबू दाऊद की हदीस पेश कर रहे हो, सही अल मुस्लिम की हदीस है, ठीक है मेरे भाई, किताबुल तौहीद की। अल्लाह के नबी एक बांदी से पूछते हैं कि ऐन अल्लाह, बता अल्लाह कहाँ है? तो वो बांदी कहती है अल्लाह आसमानों में है। और अल्लाह के नबी पूछते हैं कि बता कि मैं कौन हूँ? तो वो बांदी कहती है कि आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि इसको आजाद कर दो, ये ईमान वाली है, मोमिना है। तो अल्लाह के नबी ने उसको टोका क्यों नहीं बांदी को? ए बांदी, तू पागल हो गई है क्या? अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, तूने आसमानों में कैसे बोल दिया है? यानी कि अल्लाह के नबी कुछ और अकीदा सिखा के गए, आपने अपने मन से अकीदा बना दिया कि कड़ कड़ में शंकर। तो ये बात गलत है मेरे भाई। हो गई बात, तकरीर हो गई। हाँ बोल, अरे तकरीर नहीं है, आपको बात बता रहा हूँ। बताइए ना, अल्लाह ताला हर जगह है, तो क्या मूर्ति में भी अल्लाह है? अच्छा नहीं, सुनिए, आपके हिसाब से क्या मूर्ति में अल्लाह है, पत्थरों में अल्लाह है? जब मैं बोलूंगा जिस तरह मैं आपकी बात सुनाना इस तरह से। अरे तो आप मेरे जवाब तो दीजिए, कंफ्यूजन मेरा दूर कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए। आप माशाल्लाह अहले हदीसों के अकीदे को मेरे भाई उल्टा सीधा बोलते हैं। आपका अकीदा बिल्कुल मतलब भाई वो दूध का धुला हुआ है, तो आप थोड़ी मेरी इस्लाह कीजिए ना। आपने कहा अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो क्या अल्लाह ताला मूर्ति में भी मौजूद है? हाँ, उसके लिए ना सवाल का जवाब या इसका बहुत दूर होता है। जवाब सुनेंगे। हाँ चलिए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप। सुन रहे हैं ना? हाँ, मेरी बात की तरह सुनिए, आप बीच में बात मत करिए। नहीं भाई, पहले जो मैंने आपसे पूछा है, पहले उसका जवाब दे दीजिए। क्या मूर्ति में अल्लाह मौजूद है?
बकवास नहीं करने दीजिए आप। फिर भी आपके देवबंदी मुफ्ती तो बीच पब्लिक में बोलते हैं हाँ मूर्ति में भी अल्लाह है, आप भी बोल दो ना मूर्ति में अल्लाह है। बताओ ना अपने अकीदे बताओ अपनी जबान से। सुनेंगे ना, बोलेंगे तो ना, किसी को बोलना शुरू करेंगे फिर आप। अरे तो बोलो ना मेरे भाई, आप बोल भी नहीं रहे हो। बोलो बोलो। हाँ, अरे बोलिए कुर्बान अली साहब, बोलिए। हाँ, अभी मैं जब आप बोल रहे थे तो ये बोल थे हर जगह बोले माँ के साथ ये बाबा के साथ ये बोले थे ना, आया ना बोले क्या? अभी आप जो बोले थे अगर हर जगह बोले थे अम्मा के साथ बाबा के साथ, ऐसा है तो बोले कितने अल्लाह हो गए। हाँ तो आपका अकीदा ही ऐसा है ना कि अल्लाह ताला जात के एतबार से सबकी शहरत के करीब है, तो दुनिया में मतलब जितने इंसान है जितनी शहरतें हैं सबके साथ एक एक अल्लाह है माज़अल्लाह, तो कितने अल्लाह हो जाएंगे भाई आप बताओ। अरे मेरे भाई आप ये बात बोले, एक झूठा अकीदा छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने से अच्छा है कि एक झूठे अकीदे से इंसान चुपचाप तौबा कर ले और जैसा मेरे भाई साहब का अकीदा था उसको मान लिया जाए। मनवाने के लिए फोन करे आप, जो अकीदा मालूम करने, सही अकीदा मालूम करने के लिए फोन नहीं करे, अपनी बात मानना। अरे तो सही अकीदा आपको खुद को नहीं मालूम है तो आप मेरे भाई कहाँ से बताएंगे, बताइए ना। अच्छा मेरे को मालूम नहीं है, फिर क्यों फोन किया आपने? तो जानना था ना कि आप मेरे भाई इतने बड़े मतलब अल्लामा बनते हैं, आपको अल्लाह की जात के ताल्लुक से आपका अकीदा इतना मतलब भद्दा गंदा है आदम की औलाद। भाई। फिर आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए ठीक है, बताइए अपना अकीदा बताइए। आप बोलना नहीं, आप खाली बोलने पे उतर आए भाई, मेरा अकीदा बताऊंगा। अच्छा सुनिए, बताइए ना मेरे भाई, हम सुन रहे हैं, बताइए। आप सुन नहीं सकते ना, मैं आप ये अरे बोलो मेरे भाई। हाँ तो आप सुनेंगे तो बोलूंगा ना। हाँ सुन रहा हूँ ना मेरे भाई, आदमी कैसे सुनता है, जब आदमी खामोश होता है तभी तो सुनता है ना। मैं खामोश हूँ, बोलो। बीच में बकवास नहीं। अच्छा बोलो मेरे अल्लाह के बंदे, बोलो। चुप पड़े यार, बोल रहा हूँ सुनो। अभी आप गुफ्तगू के दौरान आप ये बताए थे अम्मा के साथ बाबा से कितने अल्लाह हो जाएंगे। आप ये बात, वही बात आपको कुरान साबित कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं तुम तीन हो, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम, तीन में से मगर चौथा वो से मुराद अल्लाह की जात है। अरे हाँ तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है, तो चौथा के अल्लाह ताला खुद मौजूद है इस दुनिया में। आप 10 मिनट पहले 2 मिनट में सुनकर आप खामोश रहिए। अरे तो आप अल्लाह के ताल्लुक से बोतानबाजी करेंगे तो मेरे भाई कैसे हजम होगा इंसान को। अरे शैतान के बच्चे सुनो, नहीं तो अल्लाह के नबी ने क्या इस आयत का माना कि अल्लाह ताला को जाती अपने पास लिया? आप जो ऐसा बोले क्या अल्लाह ताला इस दुनिया में आ सकता है? भाई ये दुनिया बहुत छोटी है, ठीक है, और अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह जो सबसे बड़ा है वो इस छोटी सी दुनिया में आ सकता है? इतना गंदा अकीदा हो गया, और इस छोटी सी दुनिया में आने के साथ साथ हर जगह मौजूद भी हो जाएगा। कैसे अकीदे हैं मेरे भाई। सुनिए आप सुनिए, आप अपना सुनात के बात करिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह का अकीदा क्या था अल्लाह की जात के ताल्लुक से? सब मालूम है, सब अहले हदीस को ठिकाने लगाएंगे हम। अरे भाई फिर वही चीज, अहले हदीसों को इल्म के मैदान में हराने वाला अभी तक कोई मुकल्लिद पैदा नहीं हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह का भी अकीदा ये था कि अल्लाह सुब्हानो तआला अपने अर्श पर मुस्तवी है। अम्मा का ईस्ट इंडिया मलिका विक्टोरिया का, तो मेरी बात सुने समझ में आएंगी। फिर यार मलिका विक्टोरिया पे आप पहुंच गए, हद है मेरे भाई। मतलब जब इल्म से नहीं जीत पाते तो बदकलामी करने लगते हैं मेरे भाई आप। जब तक जाहिल आदमी जब तक सुनेंगे नहीं तो इल्म आएंगे कैसा? तो बोलो ना भाई, अगर तीन लोग हैं तो चौथा अल्लाह है, तो इससे आपने क्या मुराद लिया? मैं बोलना शुरू ही करता हूँ। भाई तीन लोग हैं तो चौथा अल्लाह है, तो वहाँ पे अल्लाह की जात है या अल्लाह का इल्म है, ये बताइए। हाँ तर्जुमा से ना, इन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम का तर्जुमा खुद आप करिए ना, क्या तर्जुमा बनता? अरे आप करो ना, आप उससे जात मुराद ले रहे हो ना, वहाँ पे जात का अल्फाज कहाँ है? इल्ला हुआ, मगर वो यानी अल्लाह की जात वहाँ पर है। इल्ला हुआ हद है मेरे भाई, आप मतलब क्या, हमको लग रहा है अक्ल आपकी ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। आप समझ रहे हैं? अक्ल ज्यादा आप मेरे भाई चला रहे हैं, लेकिन इल्म आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। इल्म तो सिर्फ गैर मुखल्लिद के पास रह गया। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह के इल्म ने सारी दुनिया को ढाक रखा है, सारी कायनात को ढाक रखा है। तो अल्लाह का इल्म ने सबको ढाक रखा है ना। तो आप चाहे 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, अल्लाह है, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की पावर मौजूद है। तो इसका कौन इनकार कर रहा है? बात हो रही है बिजाती अल्लाह कहाँ है। हेलो
अच्छा सुनिए, मैं भाई आप खाली बकवास करिए, मेरी बात भी सुनिए आप। अरे सुन तो रहा हूँ, आप बोलिए तो कुछ मेरे भाई। नहीं सुन सकते ना साहब, 2 जुमले बोलता हूँ आपकी हवा खाली हो जाती है। अरे 2 जुमले जो आप बोल रहे हो जैसे मेरे भाई बहुत पुरानी दलील हो गई, कोई ऐसी दलील लाओ, कुरान की एक साफ आयत पेश कर दो जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हो कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। सुनो, तौरात इंजील को हम पेश नहीं करते, हम कुरान की 10 मर्द 100 मर्द उसी आयत। अरे तो कुरान पेश कर रहे हो तो कुरान की कौन सी आयत है जिसमें लिखा हुआ है अल्लाह ताला हर जगह अपनी जात से मौजूद है? बता रहा हूँ वही आप। हाँ चलो बता दो मेरे भाई। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम। आप अभी बोले थे अगर अल्लाह यहाँ पर भी इनके साथ है, अम्मा के साथ है, बाबा के साथ, कितने अल्लाह हो गए आप? मैं पूछ रहा हूँ, कुरान की आयत मेरे को बता रही, अगर तुम 3 हो तो चौथा मैं हूँ, अगर 4 हो तो 5वां मैं हूँ, तो कितने अल्लाह हो गए इसमें? वहाँ इल्म है ना, वहाँ आपके पागल ऐसे लोग जात को लेते हैं ना, एक्चुअल में तो वहाँ पे इल्म है, अल्लाह की पावर है, अल्लाह की कुदरत है। सवाल आपका हमने तो पहले कह दिया अल्लाह ताला सबसे ऊपर अपने अर्श के ऊपर भाई टॉप के ऊपर है, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका पावर चारों तरफ है, हर जगह है, सबके साथ है। सुनिए, ईस्ट इंडिया मलिक विक्टोरिया पैदावार क़यामत की सुबह तक भाई बाज आयतों पे ईमान आप लाते हो, बाज आयतों को छोड़ देते हो। मूर्ति में है ये हुलूल का कुरान पूरा पढ़ो मेरे भाई। ये कुरान की आयत के आइन मुताबिक अकीदा है, हर जगह होना है, ये हर जर्रे में होना है, कल से अलग अकीदा है हर जगह। भाई कुरान जो इंसान अल्लाह सुब्हानो ताला को ऊपर नहीं मानता है ना, वो कुरान की कमोबेश 1000 आयतों का इनकार करता है। आसमान में है बोले कुर्बान आपको अर्श पे होने का अकीदा रखते। अरे कुर्बान देवबंदी साहब, आपने सुना मैंने जो बोला? जो इंसान अल्लाह सुब्हानो ताला को सबसे बुलंदी, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर अगर नहीं मानता है तो वो कुरान करीम की 1000 आयतों का इनकार करता है। और आप तो अल्लाह ताला को अपने साथ मेरे भाई उनको मतलब अल्लाह ताला को बुलाए ले रहे हैं, अल्लाह ताला को हर जगह मौजूद किए दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसका मतलब माज़अल्लाह आपके हिसाब से भाई पत्थर में भी है, मूर्ति में भी है। हद हो गई मेरे भाई। अल्लाह सुब्हानो व तआला सूरे अल नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 50 में साफ साफ कहता है, और अपने रब से जो उनके ऊपर हैं कप कपाते रहते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानो ताला ऊपर है, वो हर जगह मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होता तो ईसा अलैहिस्सलाम को वो उठाता ना, वो दाएं बाएं कहीं पे भी बुला लेता। अच्छा ठीक है, एक बात सुनिए, आपके अकीदे को मान ले तो मेरे इश्काल है, जवाब देंगे आप? ओ भाई, आपके अकीदे को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए मैं तैयार हूँ, एक इश्काल है, जवाब देंगे? भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, रहम करो तुम जमीन वालों पर तो वो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जामे तिरमिजी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 323, ठीक है, और हदीस नंबर 1924, और इसकी सनद बिल्कुल सही है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम जमीन वालों पे रहम करो तो वो तुम पर रहम करेगा जो आसमानों में है। तो क्या माज़ अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? अच्छा सुनिए भाई, मेरी आपको 1438 साल बाद ये किसने बता दिया कि जाहिल ने बता दिया कि अल्लाह ताला अपनी जात के हिसाब से हर जगह मौजूद है? अरे सुन तो रहा हूँ, बोलो ना, दलील ही नहीं दे रहे हो तुम। अच्छा सुनो, ये बोल रहा है। अरे भाई जो पीछे बोल रहा है भाई, आप उनसे बात करवा दो ना डायरेक्ट। अरे जो पीछे आपको बता रहे हैं दलील, उनसे बात करवा दीजिए मेरी भाई। हम भी तो जाने आखिर, मतलब आज तक किसी देवबंदी को भाई आज तक पता ही नहीं चला कि उसका अल्लाह है कहाँ। कितने शर्म की बात है, देवबंदियों को यही नहीं मालूम उनका अल्लाह है कहाँ। कोई कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कोई कहता है कि अल्लाह ताला कहीं पे भी नहीं है, बिला मकाम है। मतलब हद है मेरे भाई, कोई एक अकीदा ही नहीं है ढंग का। भाई मैं आपके अकीदे को मानने के लिए तैयार हूँ, ये इश्काल है, जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे इंशाअल्लाह। बताइए। अल्लाह ताला अर्श पे है या आसमान में है? अल्लाह ताला अर्श पे है या आसमान में है?
अच्छा भाई, ये तो मतलब वही बात हो गई कि आप भाई इंडिया में हैं या उत्तर प्रदेश में हैं। अरे ये बकवास इंडिया ही में तो उत्तर प्रदेश है, उसी तरह आसमानों के ऊपर तो अर्श है। बकवास नहीं, अल्लाह अजीब मेरे भाई मंतकी सवाल कर, तो ये सब मंतकी सवाल हमसे ना करना। नहीं अभी आप हमको जानते नहीं हो हम कौन बोल रहे हैं। ये सब मंतिकबाजी मेरे साथ ना खेलना, समझ रहे हो। जो कूफा के जो कयासी लोग हैं ना, वो भी मेरे नाम से भाग जाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से भयानक कयास करना आता है मुझे। अल्लाह ताला अर्श पे है या आसमान में है? अरे मेरे भाई, सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला है। मैंने पहले क्या दिया, सबसे टॉप पे, सबसे ऊंचाई पे अल्लाह है। अल्लाह का बैतुल मक़दस कहाँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ। अल्लाह ताला अर्श पे है या आसमान में है? अबे तो आसमान पे ही तो अर्श है, पागल आदमी। अब तू कहेगा कि तू इंडिया में है या उत्तर प्रदेश में है, तो इंडिया में तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो इलाहाबाद है। अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई। विक्टोरिया अपने हकीकत भाई देखिए, आपके हक समझ में आ गया है, लेकिन आप मेरे भाई हक जानने के बाद भी इनकार कर रहे हो, तो इसको मेरे भाई काफिर कहते हैं। कि मेरे भाई जिस तक हक पहुंच जाए और उसका दिल गवाही दे दे कि जो सामने वाला बात कह रहा है वो बात सही कह रहा है, उसके बावजूद ना माने, तो वो काफिर होता है। मेरे बड़े भाई, मेरा एक सवाल है, खाली आप बकवास मत करे बगैर। मेरा सवाल ये है, अल्लाह ताला अर्श पे है या आसमान में है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आसमानों के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह है। मैं क्या गाना गा रहा हूँ इतनी देर से? मैं अर्श के बारे में सवाल नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे सवाल को समझने की सलाहियत। अरे फिर वही चीज, अभी मैं आपसे पूछूं कि आप औरत हो या भाई किन्नर हो, तो मेरे भाई आप क्या जवाब दोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप औरत हो या मेरे भाई किन्नर हो, आप कौन हो? कुर्बान भाई, आप औरत हो या किन्नर हो, कौन हो? फटाक से जवाब दो। मलिक विक्टोरिया की औलाद। फिर वही चीज, बस अल्लाह का अर्श। बस मेरे भाई वजू टूट गया तुम्हारा, इसीलिए कह रहे हैं पसीना पोंछ के आराम से सवाल करो। तुमको सवाल भी नहीं करना आता है। नमाज के लिए वजू आना, आपसे बात में वजू सूरत है, आपको नमाज है। तुम लोग मेरे भाई ऐसे ऐसे सवाल मतलब भाई पैदा करते हो कि जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था, अर्श के ऊपर अल्लाह बैठा है कि लेटा है कि खड़ा है। ये सब फालतू सवाल कभी किसी सहाबा ने अल्लाह के नबी से नहीं पूछा, लेकिन तुम लोग अल्लाह की जात के ताल्लुक से मजाक करते हो कि अल्लाह ताला बैठा है कि लेटा है कि खड़ा है, अर्श से पहले अल्लाह कहाँ था, अर्श को बनाने के बाद अल्लाह कहाँ गया, और अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है। ये सब बेवकूफी वाले सवाल करते हो तुम लोग। जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है सूरह ताहा की आयत नंबर 5 में कि भाई वो रहमान अर्श पर कायम हुआ, तो हुआ, लेकिन कुरान में तो कील काल करना ही करना है ना। तुम लोग का मजहब ही यही है कि कुरान हदीस में तावील करना है, उसमें भाई कील काल करना है। अपने इमाम के कॉल पे तो कभी कील काल नहीं करोगे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात आएगी तो बराबर कील काल करोगे। अरे कुर्बान अली साहब, हम तो मतलब सोचे थे कि आप बहुत बड़े अल्लामा होंगे, लेकिन आप तो मेरे भाई एकदम मतलब लीचर बड़े, क्या बताएं, एकदम हद हो गई मेरे भाई। इतना गंदा कीदा आपका। नहीं है, आप चाहते थे मुआफ़िक़ नहीं कैसी जाती थी। आप मेरी बात ये सुनिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अल्लाह का अर्श कहाँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला जगह जगह बताए, जमीन पे होने का, ऑफिस समाई आसमान में होने का, साथ में आसमान में होने का। अरे अल्लाह ताला ने बता दिया कि 6 दिनों में हमने जमीन आसमान को बना के अर्श के ऊपर अल्लाह सुब्हानो व तआला अपनी शान के मुताबिक कायम हो गए। बकवास कर रहा भाई कुरान हदीस की बात आपको मतलब क्या भाई वो टाइम पास लग रही है, बकवास लग रही है? सुनने की सलाह फोन करके बात। अरे तो बोलो ना, तुम इतनी देर से बोल ही कह रहे हो, फालतू सवाल पूछ रहे हो कि आसमान में कि अर्श पे। अंग्रेज की पैदावार, भाई अंग्रेज की पैदावार कौन है भी आपको बताएं? आपके देवबंदी अल्लामा लोग अंग्रेजों से इनाम लेते थे, और आपकी अशरफ अली थानवी 600 रुपए की नौकरी करते थे अंग्रेजों के वहाँ। अब मेरा भाई मेरा मुंह ना खुलवाइए, अल्लाह का खौफ है, इसलिए मेरे भाई आपके जो ये बातिल मसलक की भाई मैं पोल नहीं खोल रहा हूँ, वरना अभी आपकी हनफी फिका खोल के रख दूंगा ना तो आप पागल हो जाओगे। इंडिया मलिक विक्टोरिया की औलाद। भाई बदजुबानी करने से आप हक पे नहीं साबित हो जाओगे, ठीक है? दलील दो। अच्छा, साबित हो जाएंगे भाई जिनके पास कुरान हदीस खत्म हो जाता है वो लोग मेरे भाई मतलब बदजुबानी बोतानबाजी करने लगते हैं, अंग्रेजों की औलाद और मलिका विक्टोरिया और फला। अरे हमसे क्या लेना देना विक्टोरिया से मेरे भाई? भाई अब विक्टोरिया के तो आशिक आप है ना,
अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आप लोग हैं और मेरे भाई इल्जाम अहले हदीसों पे लगाते हैं। खैर चलिए बताइए भाई, अल्लाह ताला भाई वो क्या बोलते हैं मूर्ति में है कि नहीं? भाई अल्लाह ताला हर जगह है, तो अल्लाह ताला मूर्ति में है कि नहीं? अरे साहिल, जवाब उस वक्त मिलेंगे जब तू सुनेगा। अच्छा जो भाई ये जहन्नम है, तो ये जहन्नम मतलब एक जगह है ना, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला को जहन्नम में भी आपने डाल दिया? भाई आपका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से हर जगह है, तो जहन्नम भी एक जगह है, तो क्या आपका अकीदा ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम में भी है? तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। भाई कोई काफिर भी शर्मा जाए तुम्हारे ऐसे अकीदे सुन के। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हेलो भैया। अरे भैया दलील दोगे कि नहीं? अल्लाह ताला कहाँ है मेरे भाई? मालूम ही नहीं तुमको आज तक? इतने बड़े हो गए हो, दूध के दांत भी टूट गए हैं, अल्लामा बने फिरते हो, तुमको आज तक यही नहीं मालूम कि अल्लाह है कहाँ? सुनो। हाँ सुनाओ। आप तो सुनाओ तो बोले, लेकिन अभी आप सुनने के लिए तैयार है नहीं यार आप। भाई हम सुन रहे हैं, चलिए बता दीजिए हमें एक दलील आप दे दीजिए जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा हो कि ऐ मेरे बंदों में हर जगह मौजूद हूँ। एक हमको कुरान की आयत दे दीजिए। एक मिनट की बात सुनो, आप मुनाजरा कभी देखिए, आप शायद मुनाजरा का वाक़ियत नहीं रखते आप। अरे मेरे भाई मुनाजरा करते करते मेरे भाई मेरा पूरा का पूरा बचपन बीत गया है, ठीक है? तो मुनाजरा आप मेरे भाई हमसे बात ना कीजिए। वक्त से पहले मुनाजरा करनी थी, शायद अकल में समझ में नहीं आई बात। भाई वक्त से पहले नहीं, खून में मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाल दिया है, ठीक है? खून में मेरे अंदर ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट है कि बादलों को देख के उसकी ऐसी हालत कर देता हूँ कि बेचारा एकदम फड़फड़ाने लगता है। नहीं देखे आप मुनाजरा, शायद कहीं पे आप फजूल बात। अरे हाँ, आप बहुत बड़े मुनाजिर हैं, आपको ये मालूम नहीं अल्लाह ताला है कहाँ और आ रहे हमको मुनाजरे के उसूल बता रहे। आपको मालूम है ये बात है जो है ना, वो किसी जो भैंस वगैरह चलाता ना, उसके बाद तकरीर करे तो ज़्यादा अच्छा। अरे मेरे भैया अल्लाह ताला कहाँ है इस वक्त बता दीजिए। समझ गया, आप सुनेंगे ही नहीं जब तक। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप हमें बता दीजिए अल्लाह ताला कहाँ है इस वक्त। आपके अंदर इस्तिताअत आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर। अरे इस्तिताअत मेरे अंदर बहुत है, लेकिन मेरे को अकीदा तो बताइए, आप छुपा क्यों रहे अपना अकीदा? जब से तो क्या अकीदा सुनेंगे आप? आपको खुद अकीदा नहीं, आप क्या अकीदा सुनेंगे आप? लीजिए, हमारा तो अकीदा वही है जो तमाम सहाबा किराम का था, जो अल्लाह के नबी ने उम्मत को सिखा दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे ऊपर है, अपने अर्श पर कायम है, अपनी शान के भाई अपनी शान के लायक, और उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर हर जगह है, हर तरफ है, सबके साथ मौजूद है। तो ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। आप तो नया अकीदा लाए हो ना कि अल्लाह ताला जात के साथ हर जगह मौजूद है, तो इसकी दलील आप दो ना। मेरी बात सुनो, अब मुनाजरा आपकी तरह बचपन से मुनाजरा कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सरासर आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए मुनाजरा का उसूल आपको पता नहीं है। अरे तो मुनाजरा मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपका अकीदा पूछ रहा हूँ। मुनाजरा आपके लोगों से करेंगे। आपका कोई बड़ा अल्लामा कोई उस्ताद हो तो उसका मेरे भाई नंबर दीजिएगा, उससे मुनाजरा करेंगे। आपसे तो अभी खाली मैं सिंपल नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अभी मैंने ऐन अल्लाह के ऊपर भाई वो दलीलें देना अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो मैं आपसे आपका अकीदा जानना चाह रहा हूँ। आप हमारा अकीदा क्या बयान करेंगे? आपको खुद ही कुछ मालूम नहीं है आपको, तो आप बताइए ना। आपको मालूम ही नहीं अल्लाह ताला कहाँ है? कितने शर्म की बात है मेरे भाई। आप बचपन से पैदा होने का खून में नस में आपको ये दौड़ रहा है, हमको मालूम खून में नस नस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुरान हदीस की तालीम दौड़ रही है, और कुरान हदीस का जहाँ कोई रद्द करता है मेरा खून खौलने लगता है। मेरी बात सुनिए, आपको जब कहा गया, आप जब से सुना, आप दोनों की बात सुना। अच्छा भाई, आप बोल बच्चन करते रहेंगे या मेरे भाई आप कुछ इल्मी बात करेंगे? मालूम है। हाँ, जब आपको सवाल किया गया, जब आपने कहा कि अल्लाह ताला उनके साथ भी, अम्मा के साथ भी, तो कुर्बान ने कहा कि जहाँ पर अल्लाह है वो क्या? मैंने नहीं कहा, मेरे ऊपर भाई आप तोहमत ना बांधिए। आपने कहा कि अल्लाह ताला जात के साथ शरक के करीब है, तो मैंने कहा कि दुनिया में सारे इंसान हैं, आपके माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो क्या सबकी शरक के साथ अल्लाह ताला मतलब अपनी जात के हिसाब से? तो यानी कि मतलब जितने इंसान हैं उतने अल्लाह हो गए, यानी कि अनेक अल्लाह हो गए। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, इतना गंदा अकीदा बयान कर दिया आपने। आपको शर्म नहीं आती है? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, और आप कहो सबके साथ अल्लाह जात के साथ है। भाई आप क्या बयान करते हो? आपकी मेरे भाई खुद कुछ समझ में आता है कि नहीं? चलिए अच्छा बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला क्या मूर्ति में भी मौजूद है, पत्थर में भी मौजूद है, शराब खाना, जुआ खाना, टॉयलेट बाथरूम का इनमें भी मौजूद है माज़अल्लाह आपके हिसाब से?
جو آپ عقیدہ میرے بھائی جو آپ نے اپنا بنا رکھا ہے، جو آپ میرے بھائی لوگوں کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس عقیدے کو میرے بھائی آگ بن کر کے ٹھنڈا پانی پی کے سوچئے گا کہ کتنا مطلب یہ باطل عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے، اللہ کی شان میں ایک بہت بڑی ایک گالی ہے، گستاخی ہے یہ۔ پلیز میرے بھائی آپ سے میں التجا کر رہا ہوں میرے بھائی، اس عقیدے سے توبہ کر لیجئے مرنے سے پہلے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ بھائی جو یہ عقیدہ ہے نا وحدت الوجود کا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر مطلب ذرے ذرے میں موجود ہے، یہ عقیدہ یہ اسلامک نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ عقیدہ اگر آپ کو لینا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا لیجئے۔ عین اللہ کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا ٹاپک اور عقیدہ ان کا بالکل صحیح تھا، لیکن آپ نے تو وہ دوسرے اماموں کو عقیدے میں تقلید کر لی ہے، امام بھائی وہ ماتوردی، امام اشعری، تو آپ میرے بھائی پتہ نہیں کن کن کی تو تقلید کرتے ہو، آپ کا دین کا کوئی ایک ٹھیکیداری نہیں ہے، مطلب جو بھی پیدا ہو جائے گا اس کو اپنا باپ بنا کے اس کو میرے بھائی اس کی اولاد بن کے اس کی بات ماننے لگو گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، دین کوئی میرے بھائی کسی کی مطلب کھیتی نہیں ہے، نہ ہی دین کسی کی جاگیر ہے، دین خالص قرآن و سنت ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے نبی کے دور سے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو ابھی میرے بھائی 100-150 سال پہلے وجود میں آیا، اس سے پہلے کہاں یہ عقیدہ تھا؟ ارے بولو نا قربان علی صاحب، ہلو، ٹھیک ہے۔ یہ تھے قربان علی بھائی، یہ حنفی دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو باطل عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے وہ ہر جگہ موجود تھا، وہ الحمدللہ باطل ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہ بالکل پوری طریقے سے لاجواب ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی بھی منطقی دلیل ان کے پاس نہیں بچی ہے۔ اب یہ جائیں گے اپنے علامہ کے پاس اور کہیں گے افو خان نے ایسا ایسا بولا، اب اس کا جواب دیجئے، تو ہو سکتا ہے یہ پھر سے کوئی نئی دلیل اور کوئی بھائی وہ نئی تعویل کر کے بھائی واپس آئیں اور پھر سے میدان میں آ کے کوئی نیا فتنہ چھوڑیں، تو میں انتظار کروں گا۔ اگر میرے بھائی دم ہوگا تو عین اللہ کے اوپر جتنے آپ کے علامہ ہیں آپ ان سے علم حاصل کر لیجئے، اس کے بعد ایک بار افو خان سے بات کر لیجئے گا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔